In every examination, it happens that more people get disheartened than number of selection. In every examination, particularly in a standard examination, nowadays, selection is always less than 1%. Sometimes it is 0.1%. Sometimes it is 0.2%. Yes, it is true. Those who are working hard, those who are working at right track, they will land somewhere. Same thing is happening in CAPF. CAPF AC 2021, remedical was there. Process of remedical already completed. So many of you got disheartened. Many of you are not able to clear that. It is said when we take numbers, then it is about statistics. But when we are knowing some individual, that is a story, a tragedy. For example, if every time we see, yes, so many number of candidates qualify written, so many of candidate got rejected in physical, so many candidate got rejected in medical or remedical. But if I know individuals, then it is tragedy for him or her. But it is true, always, every year this happens. I always say in medical, some components are not in your hand. If the component is not in your hand, then you should not worry too much. You gave your effort, you put your effort. For example, if there was physical event and you were not able to do, then you are at mistake. But if someone's height is 163 centimeter for male and lesser required as required by female, obviously it is lesser. So if you are not fulfilling the height, it is not your mistake. But if you are not running, then your mistake. If you were overweight and you were not able to complete, then you are at mistake. But if there is problem in your body, for example, there was a problem in your blood, there was problem in your heartbeat, heart, or some any part, you are not at fault. There are people who are said as nowadays Divyangjan, means you can say differently abled person, or initially it was known as disabled person. If someone is facing any disability, means Divyangta, then it is not his or her fault. But if you are able to qualify written examination of any UPSC exam, you are having potential, you are close to your goal. So don't get disheartened. यदि आपके पास कोई ऐसे प्रॉब्लम के कारण आप रिजेक्ट हुए हैं जिसको कि सुधार किया जा सकता है नेक्स्ट ईयर में, और यदि आपके पास अपॉर्चुनिटी है, तो प्लीज गिव योर बेस्ट आउटपुट 22 के अटेम्प्ट के लिए. यदि आपका अटेम्प्ट फिनिश हो गया, ये लास्ट आपका अटेम्प्ट था, तो अब आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो आप दूसरे एग्जाम के लिए करो, उसी जील से उसी एनर्जी लगा करके करो. बिलीव मी, कोई भी, मैं जितने कैंडिडेट को जान रहा हूँ, जितने कैंडिडेट से पर्सनल टच में मैं हूँ, यदि उनके पास रियल में पोटेंशियल है. कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं, मैं ऑलवेज कहता हूँ ना कि जब 99% नहीं हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो ऑल 99% वो बेकार में है, नहीं. उसमें से सो भी हमेशा, कल ही का जैसे फॉर एग्जांपल जूम मीटिंग यदि हिमांशु मीन्स इन द सेंस की, सो ये सॉरी 29th को, हाँ, तो जो हम उसमें डाला था, तो उसमें क्या था कि मैंने बोला कि कुछ जैसे 1 लाख कैंडिडेट एग्जाम को दे रहे हैं, तो 5000 कैंडिडेट जो हैं वो बेस्ट है, वो अपने आप में बहुत अच्छे हैं. अब उसमें से कुछ का क्यों नहीं हो रहा, कुछ 2 नंबर से मिस कर गए, कुछ पेपर 1 में 2 नंबर से मिस किए, कुछ पेपर 2 में 2 नंबर से मिस किए, कुछ ने पेपर 1 में बहुत अच्छा लाया लेकिन पेपर 2 में कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए, कुछ ने पेपर 2 में बहुत अच्छा किया लेकिन पेपर 1 ही 1 नंबर से कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए, तो उनका पेपर 2 एक तरह से चेक नहीं होगा. कुछ है मेडिकल फिजिकल में छट गए, कुछ लोग हैं मेडिकल में छट गए. तो एवरीवेयर पीपल आर गेटिंग एलिमिनेटेड, दैट डजंट मीन कि उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है. आप यदि
रिटेन क्वालिफाई कर सकते हो असिस्टेंट कमांडेंट का। बहुत बार कैंडिडेट इस बार फॉर एग्जांपल फिजिकल अपना मिस कर गए, तो उनको मौका ही ना मिला अपना पोटेंशियल एक तरह से प्रूव करने का। बट ये नहीं है इसका मतलब कि वो हार गए हैं। मैं जितने कैंडिडेट को देखता हूँ, हाँ, हो सकता है कुछ लोअर में, मैंने बोला ना आपको कि कुछ दूसरी वीडियो में बताया था आपको, तो कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो आते हैं गैजेटेड ऑफिसर बनने के लिए और कांस्टेबल बनकर जाते हैं, ये भी ट्रू है। लेकिन कहीं ना कहीं आप लैंड करते हो, आप उससे सेटिस्फाई नहीं होंगे। अब जो कांस्टेबल बन रहे हैं उनका मैंने ऑलरेडी बताया, उसके डिफरेंट कारण हैं। ऐसा नहीं है उनमें पोटेंशियल, लेकिन उनके घर वाले इतने पैसेंस नहीं रख रहे थे उनको पैसे देना एक तरह से कि भाई अब मेरे से नहीं हो सकता। बहुत सारे फैमिली ऐसे हैं जिनके पास रियल में प्रॉब्लम है, तो ऐसा सिचुएशन होता है कुछ के साथ। लेकिन आप में हौसला है, आप में एनर्जी है। जैसे आई रिमेम्बर वन ऑफ एस्पिरेंट हु वाज इन टच विद अस, तो वो फाइनली ऑब्वियसली ही इज अ ब्लाइंड पर्सन। तो अब एक अनुसार यदि देखा जाए कि यदि आप हेल्दी बॉडी के हो तो आपके पास कुछ चीजें नहीं है तब भी आप अच्छे हो, लेकिन एक पर्सन जो देख नहीं सकते हैं, उनके लिए लाइफ जो कहता ना कि एक तरह से कुछ भी नहीं है, कि आप दुनिया की जो ब्यूटी है उस चीज को देख नहीं पा रहे हो। हाँ, कोई बताता है, उस चीज को फील कर पाते हो, लेकिन एक कुछ पर्सन ऐसे हैं कि ये सोचेंगे कि अब मैं क्या करूंगा, मेरे लिए जिंदगी खत्म हो गया। और कुछ उसमें से है। तो मैं एक ऐसे पर्सन को जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में, इन द सेंस कि हमारे रूममेट है उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में, उनके साथ उन्होंने क्लास शेयर किया लंबे समय, और लंबे समय एक बहुत अच्छा फ्रेंड रहा, दोनों रहे, और आज वो आईएएस ऑफिसर हैं। तो कोई आदमी ये सोचता है कि वो हमारी बहुत बड़ी ड्रॉबैक है, किसी ने उसी को अपना स्ट्रेंथ बनाया और वो आईएएस बन गए। ऑब्वियसली इनिशियली उनको कुछ दूसरा मिला था, फिर उन्होंने तैयारी किया और फाइनली आईएएस मिल गया। ठीक है, तो एन नंबर ऑफ पर्सन है ऐसे। इरा सिंगल को आप देखो कि फर्स्ट रैंक वो लाई, तो दिव्यांगता के बावजूद वो फर्स्ट रैंक लाई। आप हमेशा जो कुछ कंपोनेंट जो आपके बस में नहीं है उसको आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन जो आपके कंट्रोल में है, जिसको आप कर सकते हो उसको करो। यदि आपके पास अटेम्प्ट है, यदि वो कंपोनेंट कंट्रोलेबल है, यदि डॉक्टर से आपने संपर्क किया और वो बोले कि यस ये इस बार मान के चलो नहीं हो पाया, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप यदि वो उसको कर सकते हो, तो फिर आप एनर्जी लगाओ। यदि ये लगता है कि अब मेरा कुछ नहीं इसमें हो सकता है, तो ठीक है, आप दूसरे एग्जाम पे फोकस करो। स्टेट पीसीएस आप दे सकते हो, आप स्टेट के पीसीएस में, या फिर सेंट्रल जो सिविल सर्विसेज है उसमें आप जा सकते हो, बैंक वगैरह में जा सकते हो। आरबीआई का फॉर्म निकलता है फॉर एग्जांपल, यदि आप एलिजिबल हो तो उसमें भर सकते हो। नेशनल इंश्योरेंस में निकलता फॉर्म, आप उसमें जा सकते हो। फिर आप एज ए टीचर बन सकते हो। और एन नंबर ऑफ जो डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मान के चलो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में इंजीनियरिंग से संबंधित निकलते रहता। तो हर जगह आपको मौका मिलते रहता है। वंस यू आर वेल प्रिपेयर्ड, इट इज सेड ना कि you should always be prepared. If you are prepared, opportunity comes, you will grab it. But if you are not prepared, then even if opportunity is there, it is of no use. Because जो अभी हम कहते हैं ना कट थ्रोट कंपटीशन है, बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं सर दिक्कत जॉब में क्या हो रहा है कि एक कैंडिडेट जो है 4 जगह जॉब प्राप्त कर रहा है। तो हर के पास ये अपॉर्चुनिटी है। कोई भी 100% श्योर नहीं होता ना कि मैं इस जॉब में, या हाँ कुछ ऐसे होते हैं कैंडिडेट जो 100% श्योर कि मैं ये जॉब में मेरा फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, मैं एक ही को करूंगा। देर आर एक्सेप्शन की बस मुझे आईएएस बनना है तो प्रॉपर आईएएस ही बनना है, उसके अलावा कुछ नहीं, तो वो कोई फॉर्म को नहीं देखते हैं। बट जो मेजोरिटी है, मासेस हैं, वो उतने सर्टेन नहीं होते हैं। यस, और जो सिंपल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उनको लगता है कि बस मुझे कोई ना कोई जॉब चाहिए। तो आप यदि रिटेन क्वालिफाई थे, फिजिकल जो भी क्वालिफाई किए, आप में उतनी स्ट्रेंथ है। कुछ ऐसे हैं जो मल्टीपल टाइम फॉर एग्जांपल रिटेन क्वालिफाई करते हैं, तो वो जरूर लैंड करेंगे अच्छे जगह पे। अब किसी ने सपोज मेंस लिखे हुए हैं सिविल्स का, स्टेट पीसीएस का, तो जरूर वो कहीं ना कहीं अच्छा जॉब वो प्राप्त करेगा। इस बात से आपको टेंशन नहीं लेना है। तो हैव पॉजिटिव एटीट्यूड। कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, पर्सनल डाउट्स है, ये कि मुझे क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें, तो आप हमें मैसेज कर सकते हो आइदर इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।